پاکستان کو وہ عزت ملی جس کی تلاش میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ آج دنیا بھر میں پاکستان کا نام عزت سے گونج رہا ہے۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، جس کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 2.5-3 ماہ شبانہ روز انتک محنت کی۔ ایرانی صدر نے بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا ایرانی صدر نے شہید سپریم لیڈر کے 3 اور 4 جولائی کو جنازے کا بتایا تو ایرانی صدر کو کہا ہم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں ضرور آئیں گے۔ ایران کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے، انہوں نے پہلی فرصت میں دورہ پاکستان کی حامی بھری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج تیل کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی لانے کا بھی اعلان کیا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی پر قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر قانون کی پیش کردہ قرارداد میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور مذاکراتی ٹیم کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی، بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر سے ملاقات کر کے قرارداد کی حمایت کی درخواست کی۔ وزیر خزانہ نے پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کے پاس جا کر ان سے مشاورت کی۔ وزیر دفاع نے خواجہ آصف اور رانا ثنا نے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے بات چیت کی۔ امریکہ ایران مذاکرات محرم الحرام کے باعث مؤخر کیے گئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاملات کو آئندہ 60 دنوں میں آگے بڑھایا جائے گا۔ جب بھی مذاکرات ہوں گے ہم اس میں شریک ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی غیر رسمی بات چیت، کہا خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہوئیں۔ امریکی اور ایرانی صدور کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے امن معاہدے پر بطور ثالث دستخط کیے، جس کے بعد سوئٹزرلینڈ جانے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر خزانہ کی اپوزیشن لیڈر سے ان کے چیمبر میں ملاقات، سابق فاٹا کے مسائل اور بجٹ سے متعلق امور پر بات چیت۔ ملاقات میں رانا ثنا اور انجینئر امیر مقام بھی شریک ہوئے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے پر فوری جرمانہ عائد کرنے کی تجویز کی مخالفت کر دی۔ جرمانے کا وقت 3 ماہ کرنے کی تجویز دے دی۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی ترمیم کو دوبارہ تحریر کرنے کی ہدایت۔ کمیٹی نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح کی تجویز منظور کر لی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا جتنے ریلیف کی گنجائش تھی دے دی، آئندہ بجٹ میں گنجائش پیدا ہوئی تو مزید ریلیف دیں گے۔ سپر ٹیکس کا ریٹ کم کیا گیا ہے، اس سے بھی تنخواہ دار طبقے کو فائدہ ملے گا۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ صوبائی کابینہ نے بجٹ تجاویز کی منظوری دے دی۔ بجٹ کا حجم 2122 ارب روپے ہوگا۔ جاری اخراجات کے لیے 1645 ارب روپے مختص۔ وفاق سے خیبر پختونخوا حکومت کو مجموعی طور پر 1584 ارب روپے ملیں گے۔ نئے مالی سال کے دوران صوبے کی اپنی آمدن 182 ارب روپے سے زائد متوقع۔ فائبرائزیشن کی آڑ میں ٹیلی کام کمپنیوں کو گھروں تک رسائی نہیں دی جا سکتی، عوام کا استحصال نہیں کیا جا سکتا۔ قائمہ کمیٹی آئی ٹی کی چیئرپرسن سینیٹر پلوشا خان کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا ٹیلی کمیونیکیشن تنظیم نو ترمیمی بل میں عوام کے حق ملکیت پر سنگین زد لگ رہی تھی۔ بل موجودہ صورت میں منظور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بل میری کمیٹی میں رہے گا تو اس پر عوامی سماعت کرنا چاہوں گی۔ وزیر آئی ٹی نے بل میں غلطیوں کو تسلیم کیا ہے، اگر وہ اس کو ناقص سمجھتی ہیں تو اس کو واپس لے لیں۔ اسرائیل امن معاہدہ سبوتاژ کرنے پر تل گیا، سیز فائر کے خلاف ورزی، جنوبی لبنان پر شدید بمباری، 28 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے، رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی لبنان میں جھڑپوں کے دوران اسرائیلی ٹینک پر حملہ، بٹالین کمانڈر سمیت 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے لیفٹیننٹ کرنل بن شمون کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈھٹائی، کہا اسرائیلی فوج جنوبی لبنان کے سیکیورٹی بفر زون سے نہیں نکلے گی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے لبنان میں حملے جاری رکھیں گے۔ پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ کا اجلاس 21 جون کو مصر میں متوقع ہے۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کے بعد
सिफारती पेशरफ्त पर मुशावरत की जाएगी। जराए का कहना है चारों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा गजा अमन अमल पर भी बात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के इजलास में शिरकत के लिए कल रवाना होने का इम्कान। और पाकिस्तान समेत बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में फी तोला सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी कमी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 14,900 रुपए कम होकर 4,38,036 रुपए का हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में फी ऑन सोना $149 कम होकर $4,156 पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 413 रुपए कम होकर 6,946 रुपए में फरोख्त हो रही है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इसराइली हुकूमत पर सख्त बरहम। कहा मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, नेतन्याहू गुस्से से पागल हो रहे हैं। नेतन्याहू काबीना के वजीर सदर ट्रंप पर जाती हमले कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में ट्रंप ही वो वाहिद सरबराह मुमलिकत हैं जो इसराइल से हमदर्दी रखते हैं। अगर मैं इसराइल काबीना होता तो अपने वाहिद ताकतवर इत्तेहादी पर इस तरह हमले ना करता। इसराइली काबीना को पैगाम है, इसराइल की हिफाजत अमरीकी अवाम के टैक्स के पैसों से होती है। ईरान का मुआहिदा करना अमरीका की जीत है। डील हर लिहाज से अमरीका के मफाद में है। लबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका लामहदूद इख्तियारात का हामिल है, हमारी ताकत की कोई हद नहीं। अमरीका खित्ते में अमन के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मशरिक़ वस्ता के फरीक़ैन जारी मुज़ाकरात को कामयाबी से आगे बढ़ने दें। ईरान को $300 अरब की कोई अदायगी नहीं हो रही, ये खबर जाली है। ईरान से तनाज़े के खात्मे के बाद भी अमरीका खलीज में अपनी फौज की मौजूदगी कुछ अरसे तक बरकरार रखेगा। मौजूदा मज़बूत सूरत हाल के बाइस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी हुई। तेल की कीमतें गिरने से स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। अब नए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई इस्लामाबाद मुआहदे के तहत की जाएगी। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी जहाजों को गुजरने के लिए इजाजतनामे जारी करेगी। बहरी जहाजों को रास्ते और वक्त की पाबंदी करना होगी। दरखास्त दहिंदगान से 60 दिन तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबॉफ कहते हैं मुआहदे की खिलाफ वर्जी, बदअहदी, मुआहदा शिकनी या गैर जरूरी मुतालबात किए गए तो भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन को माजी में सख्त जवाब दिया जा चुका है। अगर वो दोबारा उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा तो इसे पहले से ज्यादा सख्त और मुअस्सर रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी कौम के वकार और मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामनाई का कौम के नाम पैगाम। कहा कौमी सलामती काउंसिल की सिफारिश पर मुआहदे की इजाजत दी। ईरानी सदर के अहद के बाद मफाहमती याददाश्त के मुसव्वदे की मंजूरी दी। उसूली तौर पर मेरी राय मुख्तलिफ थी। सदर और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अरकान ने ईरानी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। ईरान ने मुज़ाकराती अमल में कौमी मफादात को मुक़द्दम रखा। आइंदा मुज़ाकरात का मतलब अमरीकी मौक़िफ़ को तस्लीम करना नहीं। ईरान अपने कौमी मफादात और खुद मुख्तारी पर कायम रहेगा। अमरीकी अफवाज ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी खत्म की गई। खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाहों तक कोई रुकावट नहीं डाली जा रही। ईरानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले जहाजों की आमदोरफ्त में कोई रुकावट नहीं है। मुआहदे की 5 तारीख की यकीन दहानी तक अमरीकी जहाज जनरल एरिया में मौजूद रहेंगे। अफगान तालिबान के मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा जराए और सरकारी बयानात के जरिए झूठे दावे। वजारत इत्तलात और नशरियात का कहना है केपी और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में दाइश खुरासान के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा बेबुनियाद और गलत है। दाइश समेत 2 दर्जन से जायद दहशतगर्द तंजीमों के कैंप्स अफगानिस्तान में अफगान तालिबान हुकूमत के जेरे कंट्रोल इलाकों में है। अफगान तालिबान हुकूमत झूठे और मजमूम बयानात जारी करने की आदी है। खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती पर पर्दा डालने के लिए अफगान तालिबान झूठ बोलते हैं। तालिबान का एक ड्रोन खैबर के इलाके शंको में दाखिल हुआ। पाक फजाइया के मुस्ताद फजाई दिफाई निजाम ने फौरी निशानदेही की और नाकारा बनाया।
कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुल्जिम आकिब और गुलाम अब्बास से बरामद 3 पैकेट मुनशियात भी अदालत में पेश की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने अदालत को बताया दोनों राइडर हैं और पिंकी गैंग के लिए काम करते हैं। मुल्जिमान ऑनलाइन मुनशियात डिलीवरी में मुलव्वस हैं। मुल्जिमान ने एतराफ किया पिंकी के मैनेजर हसन के जरिए मुनशियात की तरसील करते थे। मुल्जिमान को क्लिफ्टन ब्लॉक 6 के करीब से गिरफ्तार किया गया था। NCCIA कराची का गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। DHA फेज 8 और PCHS ब्लॉक 2 में कार्रवाई। 11 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। हजारों गैर मुल्की अफराद का बैंकिंग रिकॉर्ड और शवाहिद बरामद। मुल्जिमान बैंक मुलाजमीन बनकर शहरियों से हसास मालूमात हासिल करते थे। लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और फ्रॉड में इस्तेमाल सॉफ्टवेयर जब्त कर लिए गए। लाहौर में नशावर दवा पिलाकर 14 साल की लड़की से ज्यादती। गालिब मार्केट पुलिस ने मरकजी मुल्जिम दानियाल को गिरफ्तार कर लिया। SP मॉडल टाउन के मुताबिक मुल्जिम और उसकी बहन मुतासरा लड़की को वरगला कर क्वार्टर ले गए, ज्यादती की और वीडियोस बनाई। सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां देकर ब्लैकमेल करता रहा। बच्चों का इस्तेहसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चिल्ड्रन अस्पताल 4 की मंजूरी दे दी। इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक बनाने की भी मंजूरी। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में नए अस्पताल बनाए जाएंगे। वजीर आला की जेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का खुसूसी इजलास। पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी 19 साल बाद मुकम्मल फाल। मरियम नवाज का कहना है पंजाब में तरक्की का सफर हर सूरत जारी रहेगा। तरक्याती अमल में निजी शोबे को भी शरीक करना मकसद है। रावलपिंडी की सीवरेज लाइन में डूबने वाले 7 साल के वसाल की तलाश तीसरे रोज भी जारी। रेस्क्यू टीमों का 8 किलोमीटर तक 6 मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन। नाला लई के मुख्तलिफ मकामात पर भी सर्च ऑपरेशन का फैसला। वजीर आला पंजाब की बच्चे की तलाश के लिए हर मुमकिन ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। नन्हा वसाल 3 रोज पहले IJP रोड की सीवरेज लाइन में डूब गया था। बर्रे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के 15 रोजा उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद पाकपतन पहुंच गई। बहिश्ती दरवाजा इतवार को खोला जाएगा। उर्स पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले मेजबान मैक्सिको नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मुसलसल दूसरा मैच जीत लिया। कोरिया को 1-0 से शिकस्त दी। चेकिया और जनूबी अफ्रीका का मैच 1-1 गोल से बराबर। कनाडा ने कतर को 6-0 से जेद किया। स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को आउटक्लास करते हुए 1 के मुकाबले में 4 गोल से फतह समेटी। वर्ल्ड कप में आज मजीद 5 मैचेस खेले जाएंगे। और पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के अगले मैच के लिए बर्मिंघम से साउथहैम्पटन पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम अपना तीसरा मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान को पहले मैच में भारत, दूसरे में जनूबी अफ्रीका से शिकस्त हुई थी। वर्ल्ड कप में आज आयरलैंड और न्यूजीलैंड की टीम्स मद्दे मुकाबले आएंगी।